नाज़रीन, पहली ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। सीधा अपना सवाल जवाब की तरफ चलते हैं जी। हेलो हेलो सर जी। जी ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ FLR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। 2009 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ 2012 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਡਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਲਈ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਤਗੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਲੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अब जे तुसी सिर्फ इंतजार कर रहे हो अपील की डेट का, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ और सही तरह तो काम कर रहे हैं तो फिर ਤੁਹਾਡਾ केस 100% होना चाहिए। और अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो कैसे हो केस साहब जी? ओके जी, ठीक ठाक। मेरे पास एक सवाल है, कंफ्यूज हूँ क्या करूँ। मेरी वाइफ इधर आई है इंडिया से, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। ठीक। वो अभी प्रेग्नेंट है। अभी वो मेडिसिन ले रही है डॉक्टर से, जो डॉक्टर लिख के दे रहा है वो फ्री ले रही है। अच्छा, तो वो जो मेडिसिन ले रही है वो उसके वीजे के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? उसका वीजा कौन सा, स्पाउस वीजा है? स्पाउस वीजा है। ओके ठीक है, और बताओ कुछ। और उसका यही पता करना था, उसका वो वीजे के ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ओके चलो ठीक है, मैं बता दूँ। देखो
जब किसी के पास प्रॉपर वीजा होता है यूके आने का, उनके पास एनएचएस को यूज करने का पूरा पूरा राइट होता है। सो अगर वो पूरा पूरा राइट अपना इस्तेमाल करके और एनएचएस को यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ मेडिसिन की बात आती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब प्रेगनेंसी आपकी होती है तो उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, आपको वो भी मेरे ख्याल है फ्री मिल जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज सॉरी अबाउट दैट, लेकिन अगर आपको फ्री मेडिसिन मिल भी रही है वहां से क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसमें कोई मसला नहीं है, आपके वीजे पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पब्लिक बेनिफिट्स के अंदर, ये पब्लिक फंड्स के अंदर ये चीज़ नहीं आती। सो आप रिलैक्स करें, आराम से अपनी वो वाइफ की प्रेगनेंसी एंजॉय करें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अगला सवाल हो गया जी। हेलो, हाँ मेरा ख्याल है आप टीवी पे इंतजार कर रहे हैं कि हेलो हेलो कब होगा यहाँ पे। चलिए अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। बुखारी भाई, मैंने ना आपसे अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना था। बताएं। ये पूछना था कि वो पाकिस्तान में है ना, और वो अपने हस्बैंड से उसने सेपरेशन लिया हुआ है। उसका हस्बैंड जो है उसको बहुत मारता है। लव मैरिज की थी तो उसके इन लॉज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इन लॉज से छुप के हस्बैंड वाइफ ने लव मैरिज की थी। तो अब वो बहुत ज्यादा धमकियां भी देता है उसको। तो वो यहाँ अगर आना चाहती है तो वो आके असाइलम कर सकती है, उसके 2 बच्चे हैं। तो वो बहुत ज्यादा फेडअप हो गई है। अब कहती है कि मैं अपने आप से बिल्कुल बेजार हो गई हूँ ना, मैं अपने बच्चों को लेके, दिल चाहता है मैं कहीं दूर कहीं चली जाऊँ जी। तो वो यही कहती थी कि प्लीज मुझे पूछ के बताओ कि ये कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं अगर मैं असाइलम अप्लाई करूँ, अगर वो बाद में आने के बाद हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले, क्योंकि अभी उसको खतरा है, वो धमकियां भी देता है और उसके पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उसमें 2 मिसकैरेज भी हो गए हैं हस्बैंड के मारने की वजह से उसके। ओके, आपके लिए सिंपल जवाब ये है जी, अगर वो यहाँ पर आके असाइलम क्लेम करना चाहती हैं, उनका पूरा पूरा चांस है कि वो असाइलम क्लेम कर सकती हैं और असाइलम जीत सकती हैं। आपने बताया उनकी मिसकैरेजेस भी हुई हैं बीटिंग्स की वजह से, आपने बताया कि उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं, आपने बताया कि उनको बहुत देर से वो मार भी रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोई जानवर ही ऐसा सलूक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो ये तो एक इंसान के साथ ऐसा सलूक करना तो बहुत ही ज़्यादती वाली बात है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो रही है और वो उससे निकलना चाहती हैं, वो यहाँ आ सकती हैं और आके असाइलम क्लेम कर सकती हैं, तो उनको पूरा पूरा राइट है असाइलम क्लेम करने का, और वो असाइलम क्लेम करके और अपने केस को पूरी तरह से फाइट करके जीत भी सकती हैं। बात सारी क्या होती है, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में असाइलम का जिक्र करते हुए बताया, लोग समझते हैं कि जी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बस वो प्रॉब्लम सिर्फ बता दो और वो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा आपके बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि आप उसको सही तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो केसेस आपके लूज हो जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपके केस के अंदर ये जो आप अपनी फ्रेंड का बता रही हैं, जो आपने मुझे सारी उनकी कहानी बताई है, वो इतनी दर्दनाक किस्म की कहानी है, और अगर इसका इनके पास थोड़ा सा भी एविडेंस होगा, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अपना केस आगे पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उनका काम इंशाल्लाह होना चाहिए। अगर वो आ सकती हैं यहाँ पे और आके असाइलम क्लेम करना चाहती हैं तो वो कर लें। उसके बाद मैं हूँ या कोई और वकील हो, कोई भी हो जो सही तरह से केस को तैयार करेगा, तो वो उनको पूरा पूरा गाइड कर सकता है स्टेप बाय स्टेप। पहले स्क्रीनिंग में क्या होगा, उसके बाद फुल इंटरव्यू में क्या होगा, अगर रिफ्यूज़ कर दिया गया तो अपील में क्या होगा, अपील की तैयारी कैसे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, क्रोनोलॉजी कैसे बनानी है, स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स में क्या लिखना है। ये सारी चीज़ें एक जो बंदा अपना काम जानता हो वो उसको लेके चल सकता है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। सो मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो आ सकती हैं और आके असाइलम क्लेम करना चाहती हैं और कर लेती हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली उनका यहाँ पे काम हो सकता है। मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि गारंटीड होगा, बिकॉज आई डोंट नो कि वो कोर्ट में आके या होम ऑफिस के इंटरव्यू में क्या कहती हैं और किस तरह बात करती हैं, कि वो अपनी बात को यकीन दिला सकती हैं कि नहीं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी की बात है। लेकिन कानून के अंदर पूरी गुंजाइश है उनका ये केस होने की। ये 1999 में एक शाइन इस्लाम नाम का केस आया था, उसने एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान में औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनती हैं, वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का हिस्सा हैं। उस सोशल ग्रुप को अगर असाइलम क्लेम करना पड़ जाए तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिल सकती है रेफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर। ये उस केस के अंदर पूरा आती। उसके बाद फिर और केसेस आते रहे, SNHM आया 2004 में, उसके बाद KN अदर्स आया, अब और भी केसेस चल रहे हैं। ये सारे केसेस एक ही लाइन लेके चलते हैं कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बने हैं,
और आप यहाँ पर आके प्रूव कर सकते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बने और आपको अभी भी खतरा है अगर आप वापस जाएं, तो बाकी पूरे मुल्क के अंदर आप जाके रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, आपने कभी मदद मांगी कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स आते हैं बीच में जिनको, और यहाँ पे औरतों की तंजीमों का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बीच में। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप आर्ग्यू करके इस केस को आगे लेके चल सकते हैं। अगर मुझसे मशवरा करना हो, आपको पता है मुझे कैसे ढूंढना है, कोई मसला नहीं जी। बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो Hello. जी। Right, brother. I've got one question regarding nationality. Yes, please, how can I help? Right, I came to UK in '97, Yeah, and my mother's passport. I was around about 11 years old, right, and '99, I committed a crime, and I was sent down for 3 years in prison. right. And since then, I never had a chance to apply for nationality, and I want to apply for nationality now. But now, obviously, when I committed the crime, I was only young. Right. But now, it's obviously things have changed to 15 years. Yes. That if you've been sent down for prison, you have to wait for 15 years. I just want to know, like, can I still apply for it? Or Well, I think you can, because your last offense was in 1999 when you were sentenced to 3 years. So it's not going to be starting, the time period for the Home Office naturalization applications is not going to be starting from the end of your sentence. It actually starts from the date of conviction. So if you were convicted in 1999, then obviously 17 years have passed by. You can certainly, well, from what you've told me, you can certainly apply for naturalization. If you complete all the requirements, all the other requirements, you'll have to do a life in the UK test, you'll have to show the B1 English test, you'll have to show that, well, the criminality requirement, I'm assuming that there is, excuse me, I'm assuming that there's never been another criminal offense committed by yourself. Other than that, I don't see any reason why you can't. Have you had any absences, any protracted absences from the UK? If not, and if you can show that in the last 5 years you've not been outside the country for more than 450 days, if you can show that in the last in the last 1 year you've not been outside for more than 3 months, then all the requirements you seem to be fulfilling. So in that sense, I would say you should certainly go for it. I'm again assuming that you have indefinite leave, and that is not an issue. So all these factors put together, and because of the fact that 17 years have seemed to have gone by since your last offence was committed, I think you should be able to apply for a naturalization. बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। इंग्लिश में तो जवाब हो गया, मैं उर्दू में बताता चलूँ। इन्होंने बताया कि 1999 में 1999 में इन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया था जिसके लिए इनको 3 साल की सज़ा हुई थी। अब ये नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने अभी तक नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं किया और ये अप्लाई करना चाहते हैं। पूछ ये रहे थे कि क्या ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो होम ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडेंस है जो दिसंबर 2014 में शाया हुई थी, उसके अंदर ये चीज़ कही गई थी कि अगर आपके कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं तो उनके बाद आप 10 से 15 साल तक आपको बैन कर दिया जाएगा नेशनलाइजेशन के लिए। सो अब इनका वो टाइम भी पूरा हो गया, क्योंकि इनको तो तकरीबन 16-17 साल हो गए अब। सो इतना टाइम गुजरने के बाद अब मेरा मशवरा यही है कि अगर बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर ये नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बुखारी साहब, 2 सवाल पूछने थे मुझे। मैं और मेरी वाइफ ने ना असाइलम क्लेम किया था। तकरीबन हमें 14 मंथ्स हो गए हैं जी। मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, मैं इंडियन हूँ। पाकिस्तानी है मेरी वाइफ ना, मेन एप्लीकेंट है और मैं डिपेंडेंट हूँ। ठीक। मुझे ये पूछना था, हमने इंटरव्यू वगैरह कर ली थी तो होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया। तकरीबन उसमें 26 पॉइंट्स उन्होंने बताया था कि इस बेस पे ना हमने रिजेक्ट कर रहे हैं। रिफ्यूज कर रहे हैं। रिजेक्ट करना बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा जी। कोर्ट में जज के सामने भी हमने काफी सारा बताया कि ये प्रॉब्लम्स है हमें। तो तकरीबन 1-2 महीने के बाद जज ने भी ना रिजेक्ट करके भेजा, बिल्कुल जैसे कॉपी पेस्ट करके भेजते हैं ना होम ऑफिस का डिसीजन। यानी उन्होंने होम ऑफिस के सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिए। सॉरी जी, होम ऑफिस के सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिए। फिर क्या हुआ सर? होम ऑफिस ने तकरीबन काफी सारे पॉइंट्स बताए थे हमें कि ये नहीं, अब आप मुझे बताइए। अब आप सर आगे चलें। अब आप मुझे बताइए, आपका असाइलम आपने किया कोर्ट से, आपको पहले होम ऑफिस ने रिफ्यूज किया, उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में आपकी अपील डिसमिस हो गई, उसके बाद क्या किया आपने?
हमने अभी अपर ट्राइब्यूनल के लिए अपील के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अभी डेट के लिए वेट कर रहे हैं। सो आपने लीव टू अपील के लिए अप्लाई किया हुआ है। चलिए आगे चलिए फिर। जी, अब आपका सवाल क्या है सर? तो मुझे ये पूछना था, जब मैंने मेरे सॉलिसिटर के पास गया था तो सॉलिसिटर ये कह रहे थे कि उनके पास ना कोई रीजन नहीं है, इसीलिए उन्होंने वही डिसीजन फिर से मतलब हमें दे दिया Doesn't है, work विच like इज that. गुड फॉर अस, ऐसे अच्छा। कुछ कह रहे थे। तो मुझे जी। भी ये बात समझ नहीं आई, ये थोड़ा बताएंगे। और एक दूसरी बात ये पूछना था, हमें ना 14 मंथ्स हो गए, तो मैं काम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने मास्टर्स की हुई है, हाँ। तो जब मैंने इंटरनेट पे चेक किया था ना, तो उस पे बता रहा था कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड को 1 साल के बाद दे सकते हैं। जी, ठीक पर है। अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो वो मुझे जाहिर सी बात है स्टेटस पूछेंगे जी। कि क्या है तेरे पास। तो इसका कोई हल है कि मैं शॉर्टलिस्टेड जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, या फिर कोई और जॉब के लिए होम ऑफिस को पूछ सकूंगा? ये तो Okay. बता देंगे प्लीज। चलें जी, मैं बताता हूँ। आपका सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन मेरे जवाब का टाइम नहीं है, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया। मैं ब्रेक से